क्लास में रेस्पॉन्ड कर रहा है। आमिर भी आ गया क्लास में। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं, तो उसमें फिल ब्लैंक्स भी है उस चैप्टर में, आप खुद कीजिएगा, थोड़ा सा करना है वो खुद कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स भेजे मैंने, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। मैम मुझे पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा है। मुझे पीडीएफ आपको ओपन नहीं हो पीडीएफ राइटर नहीं होगा तो वो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है, आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ रहा। मुझे है फोन में PDF डालो। फिर क्यों नहीं ओपन हो रहा है, और किसको ओपन नहीं हो रहा है? मैंने मैं सबसे इसमें कीजिए ना, ड्राइव से ओपन कीजिए ना, जब वहां पे ऑप्शन आएगा मैं ओपन ओपन विद ड्राइव। मैंने उसको बनाया, ड्राइव का अकाउंट मैम व्हाट्सएप बनाया तो भी नहीं open हो ऐसा नहीं हो सकता है। रहा। आज मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा। ये वाला चैप्टर पढ़ना है हमें आज, निकाले सब लोग ये वाला चैप्टर। अभी हम 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे 11:40। मैम ये क्या है? हिस्ट्री सिविक्स है जियो। ये टॉपिक से सीधी बात है कि टॉपिक से नहीं समझ आता है क्या हो सकता है। कॉमन सेंस है, हिस्ट्री है ये। मैम पेज नंबर पेज नंबर 155।
ہمیں ہے میڈیول کشمیر, ٹھیک ہے. Yes. دا اینڈ آف لاہور, دا اینڈ آف لوہارا رول, ٹھیک ہے, وہ ہے 1003 to 1328 سی. سو کیوس, اینڈ وہاں پہ کیا تھا جب لوہارا رول تھا تو وہاں پہ کافی کیوس اور کنفیوژن تھا کشمیر میں, ٹھیک ہے. سچویشن جو تھی وہ ورس بنائی گئی تھی, مطلب ورس ہوتا ہے حالت خراب تھی, وہاں پہ پالیسی ویک تھی, وہاں پہ کوئی چیز صحیح سے نہیں تھا. تو سینٹرل ایشین انویژن جب ہوا تھا, جب نا وہ پیریڈ چل رہا تھا, سینٹرل ایشین کا جو رول وغیرہ وار ہوا تھا, اس کے بعد سب لوگ اپنے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ سب ڈسٹربنس تھی. اس ٹائم پہ کیا تھا, اس میں ڈلچو انویژن تھا 14 سینچری میں. ڈلچو رچانا لداخی پرنس جو تھا, اس نے اب کیا ہوا ان بٹوین, ایسا ہوتا ہے نا جب کہیں پہ کوئی رول چلا جاتا ہے تو سب لوگ اپنا رول وہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی ہوا. ڈلچوز انویژن کے 14 سینچری میں تھا جب ہوا, آفٹر ڈلچوز انویژن اس کے بعد رنچانا جو تھا, رنچانا جو لداخ کا پرنس تھا, اس نے اپنے آپ کو بولا کہ میں رولر ہوں کشمیر کا 1930 میں, 1320 میں. اس نے جو ہے اسلام قبول کیا. کیسے؟ انفلوئنس آف, وہ کیسے اسلام کی بدھزم تھا وہاں پہ باہر ہر جگہ لداخ میں. تو اس نے کیسے کیا, وہاں پہ تھے سید شراف الدین تھے, ایک صوفی پیر اور شیخ شراف الدین. تو اس کو بلبل شاہ, اس کے نام پہ استان بھی ہے بلبل شاہ, بلبل لانکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو بڑا انفلوئنس کیا, تو اس نے اسلام قبول کیا. جب اسے اسلام قبول کیا, اس کا نام کیا پڑ گیا, اس کا نام پڑ گیا صدر الدین. کیا پڑ گیا؟ صدر الدین. وہ پہلا مسلم رولر بنا, اس ٹائم پہلی بار کوئی مسلم جو تھا مسلم کنگ یا رولر بنا. اب جو ہے جب موت ہوگی رچانا کی, اس کی کیا ہوگی, اس کی جو وڈو جو ہوتی ہے, وڈو خدا نہ خاص اس کے ہسبینڈ نہیں ہوتے ہیں, کوٹا رانی, اس نے کیا کیا, اس نے شادی کی, اسے شادی کی اداین دیوا سے, ٹھیک ہے, جس کو بعد میں کنگ ڈکلیئر کیا گیا. جب ادیانا دیوا مر گیا, کوٹا رانی نے خود ہی رول شروع کیا, ٹھیک ہے, وہ خود ہی وہاں پہ حکومت چلانے لگی. مگر اس کو بہت ساری ریزسٹنس کی فیس کرنی, مطلب اس کو بہت ساری خلافت, اس کو بہت سارے خلاف ہو گئے فرام شاہمیر. تو اس کو انہوں نے ان کو ہرایا 1339 سی میں. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ جو تخت مل گیا وہ سلطان شمس الدین شامیر کو ہو گیا, مل گیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے سلطانیت ان کشمیر کو اسٹیبلش کیا. اس ٹائم پہ اب آ گئے سلطانیت ان کشمیر. جو شاہمیری رول تھا وہ چلا 1540 سی ای تک. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شاہمیری ڈائناسٹی میں جو تھا رولر وہ زین العابدین تھا, جو 1420 سے 1470 تک رہا, ٹھیک ہے. تو اس کو بادشاہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بادشاہ, جو بہت ہی بڑا کنگ تھا. تو کشمیری اس کو بادشاہ بولتے ہیں, اس کے نام پہ برج بھی ہے, بادشاہ برج. تو اس نے کیا کیا, اس نے لا اور آرڈرز بنائے کشمیر کے, اور کشمیر کو ایک ترقی کی راہ پہ لینے لگا, کشمیر کو ترقی کی راہ پہ لینے لگا, ٹھیک ہے. Yes, ma'am. تو اس کے بعد اب ہم کریں گے کیسا کیا آرٹ ہے, کیا کرافٹ ہے وہاں پہ ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. اب زین العابدین نے جو تھا وہ کافی زیادہ اس چیز کو دے رہا تھا بڑھاوا. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ ابھی کیا پریزنٹنگ کرافٹ ہے, اس نے جو ہے نئے نئے چیزیں دی. مطلب کارپیٹ ویونگ جو ہے وہ بیسیکلی ایران سے آیا ہے, ہمارا یہاں پہ اپنا نہیں ہے, ایران سے. پیپر میکنگ ہمارا اپنا ہے, بک بائنڈنگ. سلک ویونگ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, وہ چائنا کا ہے جو وہاں سے آیا تھا, تو ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا ہے. اور پیپر ماشی ہمارا اپنا ہے. اس نے کیا ہے کہ اس نے انوائٹ کیا, اس نے دعوت دی ایکسپرٹس کو, کہاں سے, سینٹرل ایشیا اور پرشیا سے, تاکہ وہ ان کو دعوت دی, وہ ان کو سکھاتے تھے یہ چیز کے. ان نے اس کو ہیلپ کی, مطلب کیا ہیلپ کی, ان کو پیسے دیتے تھے, وہ پیسوں کی وجہ سے آتے تھے. اب کچھ کینلز جو ہے زین العابدین نے بنایا, وہ کون سے ہے؟ ککاپورا کینل, چکدر کینل, اونتی پورا کینل, مار کینل, کرالا کینل اور لال کل, ٹھیک ہے. پبلک ورکس, اب کیا کیا اس نے لوگوں کے لیے کام کیے ہیں. اس نے لوگوں کی ترقی کے لیے بہت کام کیے ہیں. اس نے نئے نئے شہر بنائے, اس نے محل بنائے, اس نے لوگوں کے لیے کام رکھا, اور ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اویلیبل رہی. اس نے ایک ٹاؤن, ایک قصبے کو دیکھا, وہ تھا زینا نگر نوشہر, جو ابھی نوشہر ہے. زینا نگر, زین پور, زین کوٹ ہے نا, زون پور. تو اس نے جو ہے اس نے کیا کہ اس نے بنایا خانقاہ,
of सईद मोहम्मद मदनी एट श्रीनगर। उसने खान का बनाया, मतलब एक दरगाह बनाया है सईद मोहम्मद मदनी का। उसने जो है रूपा लंका और सोना लंका, जो उसकी रूपा लंका सोना लंका जो दो आइलैंड्स थे डल लेक पे जैन कदल के ब्रिज के साइड से, वो दो आइलैंड्स है जो उसने बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, रूप रूपा लंका और सोना लंका। ठीक है, तो बहुत सारे उसने जो है कश्मीर की तरक्की के लिए काम किए हैं। अब लिटरेचर की बात करते हैं कैसे हैं। सुल्तान जो है उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने पैट्रोनाइज किया श्रीवारा और जुनो राजा। उसने जो लिखा जेना मतलब इसे यहाँ पे क्या आप कहते हैं, किताबों की हम बात करेंगे यहाँ पे। जेना रंगी बिसाइड्स जैना Besides जैना छात्रिया और जैना विलासा ऑफ योधा, बट वेर ये सब कुछ बुक्स जो है लिखी गई वेर रिटन ड्यूरिंग इस जमाने में जो है जैना छत्रा और जैना विलासा योधा भट्ट का जो है वो लिखी गई इस टाइम पे। और रजत रंगनी ऑफ कल्हाना वो ट्रांसलेट की गई पर्शियन में ताकि सब लोग पढ़ सके, उस टाइम पर्शियन सबको आती थी। अच्छा वो जो अच्छा पोएट था, शायर अच्छा था, तो सुल्तान ने पर्शियन पोएम लिखी जिसका नाम था शिकायत। क्या नाम था? शिकायत। जो पोइट्री क्या थी वो लल दद नोन एज वर्क। द पोइट्री ऑफ लल दद नोन एज जो शार जो लल दद लिखती है उसका नाम वाक है, उस पोइट्री का जैन नाम वाक है। एंड शेख नूरुद्दीन कॉल्ड शुक इमर्जन ड्यूरिंग दिस, उसने उसका नाम कहा शुक उस टाइम पे जो सुल्तान था। अब रिलीजियस टॉलरेंस, अब हम मजहब की बात करें तो सुल्तान को काफी ज्यादा माना जाता था उसकी पॉलिसीज के, उसके रिलीजियस टॉलरेंस के, जो दूसरे रिलीजन्स थे। उसने क्या किया, उसे खत्म किया जजिया और टैक्स वगैरह, और बैन किया काउ स्लॉटर, काउ को मारना। उसने जो है हिंदू की टेम्पल्स बनाए, फिर से कंस्ट्रक्ट किए, तो कुछ बने हुए थे। तो मगर सुल्तान तो खुद मुस्लिम था अपनी पर्सनल लाइफ में, मगर उसने दूसरे रिलीजन को कभी डिसग्रेस नहीं किया, हमेशा उनको बढ़ावा भी नहीं दिया, लेकिन उनको नुकसान भी नहीं पहुंचा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो उसने रिपेयर किए हिंदू टेम्पल्स, तो मतलब उसने वो मॉन्यूमेंट्स रखने की कोशिश की है। अब उसका राज कब खत्म हुआ? शाहमीरी डायनास्टी जब क्लाइमैक्स से पहुंची, मतलब जैनुल आबदीन, उसकी डेथ के बाद जब बहुत सारे जो है जंग हुए, जो वो रूलर से जो 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 इतने ताकतवर नहीं थे जो वो जंग जीत सके, बहुत सारों ने उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर जो है इजीली एक जब जैनुल आबदीन हट गया ना, मतलब एक मेन सपोर्ट हट गया, तो कश्मीर को एक आराम से एक चीज मिली जिसको आराम से कोई भी खासकर फॉरेनर्स को हासिल कर सकते थे। तो क्या आ गया? मिर्जा हैदर दौलत दुगलक दुगलत आ गया। ये एक कजन था बाबर का, सॉरी मैंने कहा था ना पहले बाबर से पहले बाकी लोग आए थे। तो उसने कश्मीर को हासिल किया इन 1540 एडी। एंड आसाम से, क्योंकि कोई था ही नहीं, जैनुल आबदीन का रूल तो खत्म हुआ था, उसको थे नहीं, उसके जो सक्सेसर्स थे वो काफी कमजोर थे, तो उन्होंने वो हार गए और फाइनली वो मिर्जा हैदर दौलत ने हासिल किया। उसने रूल किया 1551 एडी से, और उसके बाद जो है वो मारा गया, तो उसके अपने लोगों से ही, जो लोकल से, उन्होंने उसको मारा वहां पे। ठीक है, उसके बाद चक रूल आया। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम इस पावर की बात करें, मिर्जा हैदर तुगलक की डेथ के बाद शाहमीरी रूलर काफी ज्यादा वीक हो गया, जैसे जैनुल आबदीन का हो गया। तो तो उसके बाद क्या हो गया कि चक्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो वो थ्रोन, वो तख्त को उस टाइम पे होल्ड नहीं कर सके। ठीक है, अब गाजी चक जो चीफ मिनिस्टर था सुल्तान हबीब शाह का, वो जो है उसने रूलर्स को साइड पे रखा, उसने अपने आप को ही रूलर बताया। कौन था? गाजी चक। असल में वो चीफ मिनिस्टर था सुल्तान हबीब शाह का, तो उसने कहा भाई मैं ही यहाँ का रूलर हूँ, तो उसने चक रूल वहां पे स्टार्ट किया। अब चक रूलर्स में कौन था? यूसुफ शाह चक, वो 1579 टू 86 एडी तक था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। अब कैसे था? उसने बहुत सारे जो है रूलर्स, सॉरी स्कॉलर्स को अकम्प्लिश किया, उससे इंटरेस्टिंग म्यूजिक और डांस बनाया। यूसुफ शाह जो है
immortalized in the song of a supposed queen Habba Khatun. जो यूसुफ शाह चक है उसकी जो बीवी क्वीन थी हब्बा खातून, पोइटस जो थी, एक शायर थी, उसने बहुत सारे लव रिलिक्स लिखे थे, मतलब उसने पोएम्स जिसमें प्यार का इजहार किया गया हो, तो उसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे एक दूसरे के लिए, उनके हार्ट में क्या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। जब चक सारा खत्म हुआ, तो उसके रिवोल्ट सिविल डिस्टर्बेंस एंड इंटरफ्लोट्स दिस लेड टू द मुगल। अब क्या हुआ, जब अब यूसुफ शाह चक का जब रूल खत्म हो गया, जब वो उतना नहीं वीक हो गए, वो लोग नहीं रेजिस्ट कर पाए कश्मीर को। तो इससे पहले किसका था, ज़ैनुल आबदीन के बाद यूसुफ शाह चक आया, उसके यूसुफ शाह चक मतलब चक फैमिली के आए, तो उन्होंने रूल किया। अब जब वो भी नहीं उसको रेजिस्ट कर पाए, उसको नहीं होल्ड कर पाए, तो ये सब किसने लिया, अकबर ने। अब मुगल रूल कश्मीर में क्या है। मुगल्स अब कश्मीर, ये तो मैंने आपको पहले मुगल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में। मुगल्स ने रूल किया कश्मीर में 166 इयर्स तक। उसने क्या किया, उन्होंने सूबेदार को अपॉइंट किया ताकि वो कश्मीर को गवर्न से, उन्हें बाकी एरियाज में सूबेदार, जो मैंने पढ़ाया था सूबेदार वगैरह, उन्होंने हर एरिया में किए, वही यहाँ पे किए। मुगल रूल जो था वो कहाँ पे हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन्हें खत्म किया पीस एंड सिक्योरिटी के, मतलब उनका मेन फोकस था, क्योंकि वो जो है वो काफी ब्रूटल रूलर्स माने जाते हैं। अब उन्हें क्या किया कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की, लैंड रेवेन्यूज जो है वो रिशेप होने लगी, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ चलाने की कोशिश की। तो सब कुछ उनको लगा कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उन्होंने वैसे ही एम्पायर सारी बनाई। तो वहां पे जो है पॉलिसीज बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया, उनको अपने हिसाब से डाला गया, ठीक है। कोर्ट्स जो है काजीज के जो थे, एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे, उनको जो है जस्टिस दिया गया, मतलब उस हिसाब से मतलब उनके हिसाब से जो सही था उन्होंने वो किया, जो उससे पहले रूलर के हिसाब सही तो उसने वो किया। तो हर किसी के लिए सेम रूल होना, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, टोल टैक्स को खत्म करना, फोर्स्ड लेबर दैट इज बेगर, तो वो खत्म किया, तो रूट्स को अच्छे से इम्प्रूव किया, तो ट्रेड वगैरह को आगे किया, क्राफ्ट जो है कश्मीर का उसको एनकरेज की, और कॉमर्स कश्मीर का, मतलब यहाँ पे ये अगर हम इस पिक्चर की बात करें, तो इस पैरा की बात, यहाँ पे तो ये ब्रूटल रूल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि इसने हर तरीके से पीस और सिक्योरिटी लाई। मगर वो यूजुअली जो है, जब हमने मुगल रूल्स पढ़े थे, तो वहां पे कहा था कि दे आर वेरी रूथलेस रूलर्स। तो लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रूलर था जिसने बहुत अच्छा किया था, बाकी सारे जो थे बहुत ही स्टार्टिंग में और क्योर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसने एक किंग को, जो ये था मेवाड़ का बादशाह था, किंग था, उसको मारा था, उसके बाजू काटी थी, मतलब इतना वो बहादुर था कि उसने जब तक उसकी, मतलब उसने उसके कहते हैं कि 30 वॉर किए थे तलवार से, तब भी वो जंग लड़ रहा था। तो उसके हिसाब से अगर उस हिस्ट्री के देखेंगे, तो इनको जो है काफी रूथलेस रूलर्स, पर सब ऐसे नहीं थे इनिशियली। चलो जिसने ऑक्यूपाई किया है वो जो है काफी ज्यादा उसने कश्मीर की इम्प्रूवमेंट के लिए कश्मीर को, यही वजह है कि हमारे पास जो है मुगल्स के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, मुगल्स गार्डन है, मुगल्स की कुछ बिल्डिंग्स हमारे पास यहाँ पे अभी भी मौजूद है, ठीक है। किसी को और कोई पूछना, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। जो मैंने इससे जो मैंने इससे पहले हासिल की, सॉरी, जो मैंने इससे पहले आपको दी ना ये क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद उसकी जो फिल्म लैंग से आप खुद करेंगे, ठीक है। हेलो मैडम। हेलो। यूनिवर्स, हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये कि लॉकडाउन कर निमन वना काम दे छु तय सुजु काम अस करो चाकन हाँ, तमाम। अस वनोय न तान यमन। पान वोन हेलो। मे हां। सो वन बुझो तुम यस शिकायत ना स्कूल कॉपी सबमिट करें, हां।
سُہ کٔرِو تُہۍ پرنسپل تہٕ وایس پرنسپل سۭتۍ کتھ ییٚلہِ تِم اَسہِ وَنن نا تُہۍ کٔرِو کاپی چیک أسۍ کرو آرام سان تہٕ بیٚیہِ روٗد سوال بہٕ چھَس یِمن کیٛاہ زوٗم میٖٹِنٛگ منٛز کیمرا آن کرناوان تہٕ پَتہٕ چھَس بہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ سٲرٕے کاپی چیک کران مےٚ کوٚر ہیٚکے وۄنۍ چونٕے مدد کٔرِتھ مگر کیٛاہ چھِ وَنان یِمن کیٛاہ مارکٕس چھِ أنمٕتۍ ژٕ دوٚپ مےٚ اَسہِ چھُنہٕ فیٖس چھُنہٕ یہِ أکیاہ چھُ بَرُن موبایل فیٖس ترٛاوُن ٹیوٗشن فیٖس وٕچھ چھُ حظ الگ تۄہہِ یہِ تہِ کانٛہہ پرابلِم چھِ تُہۍ کٔرِو تہٕ آفسَس منٛز کَتھ دوٚیِم کَتھ چھِ کہِ بہٕ چھَس چیک کران بہٕ چھَس یِمن کیمرا آن کرناوان پَتہٕ چھَس بہٕ یِمن کاپی ورکہٕ چیک کران سُہ چھُنہ اَسہِ أسۍ رِکاڈ روزان کُس چھُ کاپی دِوان تہٕ کُس چھُ کاپی چھُنہٕ دِوان سُہ چھُ اَسہِ أسۍ رِکاڈ روزان تہٕ باقٕے کیٛاہ آسِوٕ تۄہہِ کمپلینٹ تُہۍ کیٛاہ آسِوٕ تۄہہِ وَنُن سُہ گوٚو آفِس گژھُن تہٕ وَنُن یا فون کَرُن تِمن تہٕ وَنُن بہٕ اَسہِ چھَنہٕ اَتھ مُتعلِق کانٛہہ اِنفارمیشن کُنہِ چھُنہٕ पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक इन अ ग्रुप प्लीज पेरेंट्स को अलाउड नहीं है ग्रुप में टीचर्स के साथ कुछ बात करना अगर आपको कोई भी इशू है आप ऑफिस जाइए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए ठीक है चलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे वो आप कॉपी कीजिएगा ठीक है तो बाकी मैं कल पढ़ा